I'm very excited because when I first was offered the film, I had no idea what the story was. And then when I read the script, I really felt that it was a lost chapter in history and it needed to be told, and especially through the cinematic medium. What I like very much is the story and my own role, because when you see Jin Kaur for the first time in the film, she's lost everything. She's lost her husband, her son, her kingdom. She's in a state of penury, and you imagine that she's going to be a very helpless woman. But in spite of the adversity, you find that she's actually a very feisty woman, and she's there with the sole mission of telling her son that this is not your reality. You are a Sikh, you're not a prince, you're a Maharaja, and you need to go back and reclaim the Sikh empire. So the role is feisty, it's strong, it's emotional, it's naughty. There's particularly a scene with Queen Victoria where she's invited to tea, and then she looks at the cup and says in Punjabi that isn't, I think I've seen this tea set somewhere, and isn't it a tea set that you've robbed from us in India? And Queen Victoria feels she's saying something awkward. So Dilip immediately says, she says the tea is very good. And she says, no, I didn't say that. I said that you've robbed it. So that's a very delicious moment in it. And it's also very emotional. Well, you know, I was very nervous about the Punjabi because I don't speak Punjabi and I've just learnt it by heart, and I find it very heartening that the Sikh community all over the world has been very kind in their appreciation of the Punjabi diction, which was very important for me. See, when I was working the film, I didn't know that Satinder was such a big star. It was much later that I went to one of his concerts in Mumbai and I realized, my God, he's got a huge fan following. And we hit it off right from the word go. We were staying in the same hotel, and in the morning, you know, Sartaj is one of those few people, singers, when you tell him गाना गा दो तो फौरन गा देंगे. वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा गला खराब है or something or the other. So in the morning we would sit and we would sing, and it was very nice. सतिंदर सरताज जी की ये फर्स्ट डेब्यू फिल्म है, वो भी हॉलीवुड फिल्म है. एंड आईफा में काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था इस फिल्म को, वहाँ पे प्रेजेंट की गई थी ये फिल्म. एंड आने वाले टाइम में और भी काफ़ी जगह पे ये जाने वाली है फिल्म फॉर द फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग. ऑलरेडी काफ़ी फेस्टिवल्स में प्राइज़ जीत भी चुकी है. एंड आज मुंबई में पहली स्क्रीनिंग रखी गई है ये स्पेशली फॉर द गेस्ट ऑफ शबाना जी एंड सरताज जी. एंड हमारी NGO पंजाबी ग्लोबल फाउंडेशन इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग दिस फिल्म बिकॉज बेसिकली हम वी ऑलवेज सपोर्ट द पंजाबी सिनेमा. एंड दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन द सिख हिस्ट्री. तो इस कंसर्न को लेके आई वांटेड टू शो द पीपल एंड द अपकमिंग जनरेशन की फिल्म में कितना ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस फिल्म. शबाना जी की ये फर्स्ट पंजाबी फिल्म है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उन्होंने एक इस हिंदी जोन से निकल के अलग पंजाबी में फिल्म. शबाना जी की एक्टिंग के बारे में तो आप सबको पता ही है, शी इज़ लिविंग लेजेंड. एंड ऑफ कोर्स पंजाबी सिनेमा में पहली बार ऐसी फिल्म करना और वो भी इतनी आउटस्टैंडिंग फिल्म करना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा होगा. एंड उन्होंने जिस बाखूबी से ये निभाया है, आई एम श्योर आने वाले टाइम में उन्होंने मदर के रोल्स की तो मोनोपली ले ली है पंजाबी फिल्म्स में, एंड काफ़ी अच्छा काम वो करने वाली हैं. एंड आई विश हर वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेट्स बिकॉज बहुत ही अच्छा रोल अप्रिशिएट किया गया उनका इस फिल्म में.
अच्छा लगा. As I'm Punjabi, I'm also working in a Punjabi movies. I have done 5 Punjabi movies, so it feels so wonderful after seeing this कि हमारा पंजाबी सिनेमा इतनी ऊपर तक चला गया है. And after like all Bollywood stars also want to work in a Punjabi movies, and now Diljit also we see. And I feel so great. जब मैंने ये पोस्टर देखा ना तो मुझे लगा कि like it's like a Hollywood film style. So later on I come to know that this movie is in English. So it's nice. एक सिंगर को इस फिल्म में कास्ट किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे आजकल सिंगर्स की एक्टिंग लाइन में? देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा. एज आई एम अ फ़ैन ऑफ हिज सिंगिंग. सरताज ही इज़ अ गुड सिंगर एंड उसको इस लेवल पे उसका जो पोस्टर है बहुत ही अच्छा है इसको इस मूवी का. और शबाना जी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस. सो मुझे ऑल दो बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि अगर मैं भी इस फिल्म का पार्ट होती है. एंड आई ऑल्सो रियली वॉन्ट टू बी इन अ पंजाबी मूवीज़ मोर आफ्टर आई एम वर्किंग इन हिंदी. सो एक पंजाबी को बहुत खुशी होती है कि उनकी मूवीज़ और उनका सिनेमा इतना ऊपर जा रहा है. और आफ्टर ऑल द पंजाबी मूवी को इंग्लिश में डब करके रिलीज़ करना इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. Hi, my name is Monica Gill and I'm here at the special screening of The Black Prince. I'm quite excited to watch the film. As we all know, it's on Maharaja Dalip Singh. And Satinder Sartaaj, who is one of the most profound singers of Punjab, is starring in it. I wish them best of luck. And I'm here to watch it and admire it and see what they've put together through Universal Studios. So it's quite exciting. Thank you. It's so amazing and especially in Mumbai it's so overwhelming and ये तो हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है और यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है. हालांकि फ़िल्म हॉलीवुड में बनी है लेकिन आपको जब अपने घर से नवाजिश मिलती है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लगता है कि अब दरअसल फ़कीर हुए जब घर से खैर हुई. तो शबाना जी के साथ काम करना तो एक ऐसा तजुर्बा है जो आप ऐसा है कि जैसे आप स्कूल जा रहे हैं. तो रोज़ दिन उनके साथ स्क्रीन शेयर करना इट वाज सो अमेजिंग एंड शी वाज सो हेल्पिंग एंड फ्रेंडली, वेरी ग्राउंडेड. उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो इतनी बड़ी लेजेंड एक्ट्रेस हैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की और बहुत बहुत मोहब्बत से काम है. सब्जेक्ट की बात करें, लॉस्ट सब्जेक्ट है, सम पीपल आर नॉट अवेयर इन क्यों आपने इसीलिए मेरे ख्याल से क्योंकि ब्रिस्टन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स लॉस एंजल्स की जो फिल्म इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने जब भी फिल्म बनाई है तो बहुत ही उनकी एक फ़िल्म थी 12 Years a Slave जो ऑस्कर विनिंग फिल्म है ब्रैड पिट साहब के साथ. तो मेरे ख्याल उनको ये लगा होगा कि ये ऐसा चैप्टर है जो ग्लोबल है, इंटरनेशनल है लेकिन फिर भी हिडन है. तो ऐसी चीज़ें क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं खासकर उनके लिए. उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा होगा कि अच्छा सिख राज के लिए फ़िल्म बनाते हैं. उन्होंने तो कमर्शियल ही सोचा होगा ऑब्वियसली. लेकिन हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि सिख हिस्ट्री का स्पेशली पंजाब की हिस्ट्री का ऐसा पन्ना उन्होंने रोशनाया है जो सदियों से अंधेरे में था. तो मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि मैं इसका हिस्सा हो सका हूँ और ख़ास तौर पर इतनी लेजेंडरी शख्सियत का किरदार निभाना ऑन स्क्रीन, बिग स्क्रीन, वो भी मेरे तो ये एज एन डेब्यू प्रोजेक्ट है. इससे पहले मैं शायर, गवैया, पोइट था लेकिन मैंने एक्टिंग सीखा और इंग्लिश वाज माय थर्ड लैंग्वेज एंड इट वाज सो टफ टू थ्रो द होल डायलॉग इन वन थ्रो. Definitely not. Yeah, they are actually we dubbed in Punjabi and Hindi also. In that we have I wrote 5 songs for the film and yeah. Okay, my favorite is Beat Janiya and it's the first duet I sang with Tisha Campbell. She is an American singer and actress. That's like in English. Yeah. Obviously my part is in Punjabi and that's in English. बीत जानिया रुतां हानिया जे ना मानिया टोलदार में चले जावांगे ना मुड़ आवांगे वारी वारी दर पावें खोलदार. थैंक यू. सॉरी अरे कंपटीशन तो नो, मैंने ज़िंदगी में कभी कंपटीशन नाम की चीज़ मेरे जहन में नहीं आई. मुझे कंपटीशन की जगह क्रिएटिव होना ज़्यादा बेहतर लगता है और मैं हमेशा जैसे नहीं होता एक आँख दिखती है आपको हाँ तो मेहनत
मेरा पैशन है और मैं ऐसे आंखें मूंद के मेहनत करता हूँ। कभी वो कहते हैं ना कि मेहनत कर फल की इच्छा मत कर, वो एक्चुअली मेरे पे प्रॉपर जाता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ कि कभी मैं सोचता नहीं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, मैं सिर्फ करता रहता हूँ। फ़िल्म की उम्मीदें आप ओवरऑल फ़िलहाल भी देखें तो तमाम दुनिया में इतने ज़्यादा खूबसूरत रिव्यूज़, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी जिसको मैं रिप्रेजेंटेटिव करता हूँ, वो तो ऐसे उन्होंने सर पलकों पे बिठाया, फ़िल्म को खुद ऑन किया जैसे उनकी फ़िल्म होती है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अरे तू गया नहीं अभी जा, यहाँ लगी हुई है। तो इट्स सो एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग। एंड जिन जिन लोगों ने सपोर्ट किया, पर्सनली एफर्ट्स जिनका मुझे पता भी नहीं होता कि क्या बोल रहे हैं, उनके लिए मैं शुक्रिया अदा यहाँ से करना चाहता हूँ इस मीडिया के ज़रिए कि यूँ ही मोहब्बत करते रहें और दुआएँ देते रहें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी ख्वाहिशों पे, उम्मीदों पे खरे उतरें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। इस फिल्म के बारे में एक पर्सनल चीज़ें बोलूँगा कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मुझे पहले वाले शो में आना था, मेरे पेरेंट्स ने देखा और उन्होंने फ़ोन करके बताया कि 10 on 10 फिल्म है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग फिल्म है और ऐसी फिल्म है कि इसकी पब्लिसिटी एक बहुत बड़ी फिल्म की तरह होनी चाहिए थी, क्योंकि एक रियल स्टोरी के ऊपर है ये और जो कि शायद सामने बाहर आई नहीं कभी स्टोरी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि एक राजा के बेटे को किडनैप कर लिया जाता है। तो वो उस ज़माने में इज़्ज़त की बात होती है कि उनको छुड़ा नहीं पाया अंग्रेज़ों के राज से, लेकिन ये एक आज के ज़माने में जो रियल ज़माना है उसमें सबको हम हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और जब मेरे फादर ने और मेरी मदर ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी कि बड़े सालों बाद कोई ऐसी फिल्म आई है, एक्स्ट्रॉर्डनरी फिल्म, जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर थी, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी फिल्म आती है वंस इन अ वाइल, तो मुझे अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ के आना पड़ा यहाँ पे और आके मैंने ये मूवी देखने जा रहा हूँ मैं। आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी सिंगर्स एक्टिंग में आ रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको हम कब ये तो डिपेंड करता है, समय आता है और अपने आप ऑफ़र्स आते हैं। जब सही ऑफ़र आएगा, सही मूवी आएगी तो ज़रूर करेंगे। पहले एक्टिंग कर चुके हैं तो इट्स नॉट लाइक, एक्चुअली म्यूज़िक से पहले हम एक्टिंग ही करते थे। हमने कहानी घर घर की, मेरे भाई मनमीत ने क्योंकि सास में एक्टिंग करी, हम लोगों ने, मनमीत ने तो पंजाबी फिल्म भी करी। तो अब जब अच्छी स्क्रिप्ट पे अच्छा कोई ऑफ़र आएगा तो व्हाई नॉट। बट एंड आई थिंक कि टैलेंट का कोई बाउंड्री नहीं होती। तो अगर आप फिट होते हो और डायरेक्टर को लगता है आप फिट हो तो डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो क्यों नहीं यार। सरताज जी जो हमारे वो सुपर एक्टिंग, सुना उनकी तारीफ़ है बड़ी, और हिमेश भाई ने भी एक्टिंग करी थी फिल्म में, तो करते हैं अभी भी, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो अगर टैलेंट है तो व्हाई नॉट। अब्रॉड में भी ऐसा ही हुआ, जेनिफर लोपेज ने एक्टिंग करी है और लोगों ने एक्सेप्ट करा। तो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी ट्रू टू योर टैलेंट। थैंक यू। राजपूत गाइज लास्ट वीक आई मीन ऑन 14 जुलाई मैंने डेब्यू किया है चन्ना मेरेया से। दैट्स ऑल्सो पंजाबी मूवी एंड टुडे वी हैव कम टू सी ब्लैक प्रिंस, दैट्स अ पंजाबी मूवी और इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रही है। एंड आई रियली वांट टू थैंक गुरप्रीत दीदी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है टू वॉच सच अ लवली मूवी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि मेरी डेब्यू मूवी दैट इज़ चन्ना मेरेया, उसको तुसी बहुत प्यार देता और बहुत प्यार कर रहे हो एंड थैंक्स अ लॉट टू एक्सेप्ट मी एज अ पंजाबी एक्ट्रेस। थैंक यू सो मच।
Yeah, sure. So finally I have watched The Black Prince and it's an amazing movie. Internationally बहुत अच्छा किया है and especially I would like to appreciate सतिंदर सरताज जिनका ये डेब्यू है and I'm big fan of him और उन्होंने बहुत अच्छा किया इस मूवी में, उसके लिए congratulations to him, to शबाना मैम and thank you गुरप्रीत दीदी to invite me to watch such a lovely movie. Thank you so much. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस को लेकर के और मैं प्रीमियर के लिए शायद 10 मिनट लेट हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा मूवी देखूँ और इसमें शबाना आज़मी जी हैं जो एक बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है हम सब लोगों के लिए और हम कितने डेकेड से उनसे सीखते आ रहे हैं और एंटरटेन होते आ रहे हैं। सो मैं एक्साइटेड हूँ अंदर मूवी देखने के लिए और एक सिंगर भी हैं इसके अंदर जो परफॉर्म कर रहे हैं। सो मैं एक्साइटेड हूँ, देखना चाहता हूँ इसको और नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है द ब्लैक प्रिंस, हम सब लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। कनेक्शन आप क्या कहना चाहेंगे पंजाबी बॉलीवुड, अभी बॉलीवुड शबाना आज़मी जी पंजाबी में डेब्यू कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सो आई डोंट थिंक सो दीज डेज देयर इज़ वी कैन नॉट टॉक अबाउट द कनेक्शंस एंड ऑल। आजकल सब एक हो गया है, बिना एक पंजाबी गाना डले हुए शायद आजकल हिंदी मूवीज़ बन भी नहीं रही हैं। सो इट्स अ गुड कॉम्बो और दिलजीत जिन्होंने इस दूरियों को और अच्छे से कम कर दिया है। सो ये शुरू से है, सोनू सूद हैं, लाइक दारा सिंह, हम बात करें इतनी पुरानी तो ये पंजाबीज़ हम लोग शुरू से सब मिले हुए हैं, धर्म पाजी और सब हम आप ही के बीच के हैं और घुस गए हैं पूरे अच्छे से अंदर। सो बढ़िया है, इस कॉम्बो में बहुत मज़ा आएगा देखने का। थैंक यू, थैंक यू। I think it is a very good film because it is based on a historical fact, of Punjab, and very beautifully shot. And Shabana's role is just amazing, and how she's really taken up Punjabi so well. She's spoken Punjabi so well, and she's a world-class actor, iconic actor, and carried this role so well. And Sartaj Singh, who is a very popular singer coming into this film, he looks like a black prince, and he looks like a Maharaja, So I'm very happy to be here, and this film has already been talked about, I think, and coming to India, and I think in Punjab it will do very well because it is a history. Maharaja Ranjit Singh is like a god to them, It is Maharaja Ranjit Singh's history, and when we read history about Punjab, Maharaja Ranjit Singh's name comes in golden words, And to know this story was actually very new to me, that how, Dalip Singh was taken to Britain, and, how he came back for his mother. I think it's beautiful and very, very touching also. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. So we just First of all, I really liked the movie. I think this is the first time that a Punjabi movie has collaborated with a Hollywood movie, Hollywood language. So it's really good to see. And of course, anyway, Shabana Azmi, I really like her acting, and all the actors, they have done a fabulous job. One thing I really want to add, सतिंदर सरताज जी, मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है। फ्रॉम पंजाब, तो उनके साथ मैंने पहले बहुत काम किया है, एंड इट्स रियली गुड टू सी हिम ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर. ही इज़ अ फैबुलस सिंगर इन पंजाब एंड ऑल ओवर आई गेस. एंड उनका एक गाना है साईं में साईं, मैंने वो गाना बहुत पसंद आएगा. मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ. क्यों ना उस गाने की 4 लाइनें आप सुना दें जब आप मैंने वो गाने की 4 लाइनें तो नहीं आती, बट मैं वो गाना बहुत सुनिया. और मतलब शबाना आज़मी ने पहली बार पंजाबी फिल्म. हाँ, एग्जैक्टली. इवन आई वॉज लाइक वेरी इलेटेड टू सी दैट शबाना आज़मी, दैट टू स्पीकिंग इन पंजाबी लैंग्वेज. इट्स really good to see that, really good. And the intense acting that I have seen her like doing it, fabulous. Loved it. हाँ, काफ़ी अवार्ड्स के लिए फिल्म नॉमिनेट भी हो चुकी है अभी तक, तो क्या लगता है आपको कैसा रिस्पांस रहेगा इंडिया में? आई थिंक इंडिया में इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज
जैसे मैंने बताया फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पंजाबी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज बोथ एक साथ सेम टाइम हम स्क्रीन पे देख रहे हैं. सो एंड दिस लाइक फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन इज़ लाइक फर्स्ट टाइम. सो आई थिंक इट्स गोना बी हिट फैबुलस. थैंक यू. या वॉज ग्रेट. बहुत अच्छी मूवी है और स्पेशली पंजाबी का यानी अगर मैं बात करूं तो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हॉलीवुड से एक कॉम्बिनेशन हो सकता है पंजाबी मूवीज़ का. ये बहुत अच्छा था. आज तक हम लोग जाके कनाडा शूट कर रहे थे बट ये पूरा थीम ही ऐसा है कि बॉलीवुड हॉलीवुड और पंजाबी सब मिक्स है इसके अंदर और बहुत अच्छा कॉम्बो है और बहुत अच्छा काम किया. स्पेशली मैं एक न्यू कमर की तरह नहीं ट्रीट करूँगा इस मूवी के स्टार को. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. मतलब एक रिस्पॉन्सिबल और एक ठहराव वाला रोल है और इट्स ग्रेट जॉब. और शबाना आजमी से तो हम सब लोग जानते हैं उनको कि वो मल्टी टैलेंटेड है और एक ज़बरदस्त लेडी है. सो शी डिड अ ग्रेट जॉब. अगर पंजाबी की बात करें तो लैंग्वेज का मतलब शबाना जी ने जब एक्टिंग की और लैंग्वेज पंजाबी बोली तो कहीं से कुछ डिफरेंस नज़र आया कि पंजाबी नहीं है या नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ? सी ये लोग वो स्टार्स हैं जिनके बारे में शायद हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि इनको किसी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा. ये इनसे बियॉन्ड हैं. दे आर द मतलब लीजेंड्स. इनकी एक्टिंग इनके बात करने का तरीका वो पूरी पंजाबी में एकदम एग्जैक्ट बोल रही हैं करेक्टर में घुस करके और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया. इट्स अ ग्रेट मूवी. मज़ा आया मुझे. बिग बॉस के बाद अगर आपकी बात करें तो आपका भी प्रोजेक्ट्स क्या होंगे आपको? मैं एक्चुअली बहुत सारे काम करना चाहता हूँ. कुछ आ भी रहे हैं और कुछ पे एफर्ट और ट्राई चल रही है. होप सो बहुत अच्छा होगा. मैं अभी MTV's के साथ एक शो कर रहा हूँ डेट टू रिमेंबर और फ्यूचर में एक और शो MTV's के साथ करने वाला हूँ और वेब सीरीज़ के लिए 2-3 के लिए प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो गए हैं. लेट्स सी आगे कुछ अच्छा ही होगा. और मैं तो आप सब लोगों से कह ही रहा हूँ काम दूँ मुझे. आया हूँ मैं तो. Thank you. And I'm a Punjabi, but I grew up in Lucknow, and I saw this movie 2-3 days back in City Mall, and I have no words to tell you how I saw the movie alone. Thank God, because then I cried freely. I howled like a child. A king, you know, the way he died, a king having no penny in the end. Look at the atrocities of the Britishers. I mean, this country should at least now wake up and feel their sacrifice. I just cried and this actor, what was his name? Sartaj. Now my God, he just is deep acting. It really moved you. Shabana Azmi was amazing and I was so happy to see my own Punjabi language in the movie. The film was beautiful. And I think after a long time, it made me cry and cry and cry for my Punjab, for my nation. And it opened my mind, that we should feel for what all went, what atrocities happened in history. I was really moved. Thank you so much for this beautiful movie. हाँ, बहुत ही गज़ब फिल्म लगी. बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और अच्छी बात यह है कि सतिंदर सरताज बहुत ही गज़ब के सिंगर तो हैं ही. स्टेज की कमांड उनको आती है और आर्ट का जो क्राफ्ट है उसको वो बहुत भली भांति जानते हैं. तो वो दिख रहा है उनकी एक्टिंग में भी और बहुत ही संजीदा अच्छे तरीके का ये कैरेक्टर था जो इन्होंने प्ले किया है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको. जी, ये तो सीजन्ड आर्टिस्ट हैं. इनके बारे में अभी तारीफ़ों के पार चले गए हैं ये लोग. मतलब जो खुद तारीफ़ बन गए हों तो उनकी क्या तारीफ़ की जाए. तो ये वो लोग हैं. थैंक यू वेरी मच.
लगी? बहुत अच्छी थी एक्टिंग, सरताज जी की बहुत अच्छी थी, मूवी सुपर हिट है। और आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को इस मूवी को देखने के लिए? ये मूवी देखनी चाहिए, आपको सिख कॉम के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। थैंक यू। इनफैक्ट वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सर की एक्टिंग कैसी लगी? एक सिंगर होने के साथ साथ उन्हें उनकी एक्टिंग बहुत सुपर थी, फर्स्ट क्लास, रियली। आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे फिल्म देखने के लिए? पूरे हिंदुस्तान को आप क्या कहना चाहेंगे? ये मतलब थोड़ा सा जैसे इंग्लिश हिंदी वर्जन भी इसका है, इसका हिंदी वर्जन भी होना चाहिए, इसको तो पूरी पब्लिक तक मालूम चले ना। जैसे हमको तो मालूम है पूरा दिलीप सिंह का पूरा, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता। नॉर्मल पब्लिक को तो थोड़ा उसमें आई थिंक हिंदी पोर्शन भी है इसका, है ना? होने वाला है, अभी है नहीं है। तो नॉर्मल इंडियन क्या करेगा? क्योंकि मैं जब 3 दिन पहले मूवी देखने आया तो चली गई थी, हम सामने रहते, सरप्राइज हुए इतनी जल्दी कैसे चली गई। तो इंग्लिश वर्जन है तो सब तो इंग्लिश, इतना हिंदी वर्जन ओवरऑल फर्स्ट क्लास, नाइस नाइस नाइस। मनानी जिंदा, शुबाना आजमी ना, शुबाना आजमी। आपने फिल्म देखी, आपको कैसी लगी? इट वॉज़ अ ग्रेट फिल्म एक्चुअली। सरताज पाजी ने बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, उनकी आंखें बोल रही थी, लाइक उनकी आंखों से उनकी एक्टिंग पता चल रही थी। ओवरऑल शबाना आंटी ने तो किल किया एज यूजुअल इन एवरी पिक्चर। इट वॉज़ अ ग्रेट मूवी। पिक्चराइजेशन, जो डायरेक्शन थी, जो पेस थी मूवी की, बहुत अच्छी लगी मेरे को। सो आई लाइक द मूवी ओवरऑल एंड इट वॉज़ अ ग्रेट मूवी। थैंक यू। कहना चाहेंगे इंडिया को, यूथ को फिल्म देखनी चाहिए? सबने देखनी चाहिए, और जो हीरो हैं उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है और काफ़ी हिस्ट्री को कलेक्ट करके बनाई गई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है। थैंक यू।